Good morning, class 5th student. I will start your 8th chapter, Saudi Arabia. It is a desert place. Okay. So, I will start. The word desert means uninhabited land or a waterless and treeless region. Desert means uninhabited land और a waterless and treeless region. It means that कहने का मतलब ये कि डिजर्ट किसे कहते हैं, मरुस्थल किसे कहते हैं, एक ऐसा जगह जहाँ पे पानी और पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं या तो पाए ही नहीं जाते हैं. ठीक है. तो जैसे ही डिजर्ट का नाम आता है वैसे ही हमारे दिमाग में क्या आता है, थार डिजर्ट, बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन आवर country and it is located in the Rajasthan. Okay. Thar desert is Rajasthan is the name that comes to our mind and hearing the word desert. There are many deserts around the world. Some hot desert are here. Okay. The Arabian desert, the Namib Kalahari desert, the Thar desert, the Atacama desert and the Great Australian desert. It is a hot desert. It is a हॉट डिजर्ट. ओके. डिजर्ट आर टू टाइप्स. डिजर्ट दो तरह के होते हैं. ठीक है. एक कोल्ड और एक हॉट. तो कोल्ड डिजर्ट के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ लिया था और हम आज किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हॉट डिजर्ट के बारे में, जो कि स्पेशली सऊदी अरेबिया के बारे में स्टार्ट करेंगे. ओके. तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेयर इट इज लोकेटेड. The Arabian desert, it has extensive and sand dunes. Bedouin tribes live here. Kalahari desert, it is situated in the south and west of Africa. The Bushmen have lived here for 20,000 years. The Thar desert is partly in India and partly in Pakistan. 4 is the Atacama desert. It is located along the coast of Chile in South America. And the 5th, the Great Australian desert, also called the Outback. It is located in the remote interior of the continent of Australia. Okay. Some other hot deserts are Mojave and Sonoran desert, United States, Monte desert in Argentina and Chihuahua desert in Mexico. The Antarctic and Greenland are some example of cold desert. So you have known the Antarctic and Greenland because we have studied in previous chapters and previous classes. आइए इसके लोकेशन के बारे में जानते हैं. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया occupies most of the Arabian Peninsula. Okay. It is surrounded by the Jordan, Iraq, Kuwait in the north. It's north in Jordan, Iraq and Kuwait, and in east Persian Gulf, Qatar, Mahamana, Bahrain and United Arab Emirates. In east, what is its south? The Arabian Sea, Oman and Yemen in south. Okay. And last is Red Sea in its west. Red Sea in its west. Most of Saudi Arabia is rocky plateau covered by a vast desert. The mountain on the western side are very close to sea desert. The mountain and western side are very close to Red Sea. About half of the country is a barren desert. About half of the country is a barren desert. It means that जितना मतलब पूरा जितना टोटल एरिया है इस कंट्री का, इसका हाफ पार्ट्स क्या है, डिजर्ट है. ओके. बैरन डिजर्ट है यानी कि बंजर भूमि है यहाँ पे. उसके बाद आइए, देयर आर नो लेक्स और परमानेंट रिवर इन सऊदी अरेबिया बिकॉज हियर आर वेरी लैक ऑफ रेनफॉल. यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे परमानेंट रिवर और लैक्स नहीं पाए जाते हैं. द वैलीज और स्ट्रीम दैट आर फॉर्म्ड आफ्टर द रेन्स आर टेम्पोररी. देयरफॉर देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर इन दिस कंट्री. इस कारण से क्या है कि यहाँ पे फ्रेश वाटर का बहुत ही शॉर्टेज है, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर पीने का पानी यानी कि उपयोग का पानी मिलता है. आइए इसके क्लाइमेट्स और वेजिटेशन के बारे में जानते हैं. सऊदी अरेबिया हैज़ अ एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट. इट हैज़ अ एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट बिकॉज इट इज डिजर्ट एरिया ना. सो
there is hardly any rainfall. In fact, it may not rain for several years. कभी कभी तो यहाँ कई सालों तक बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो जब यहाँ कई सालों तक बारिश नहीं होगी तो ऑफिशियली यहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, हॉट होगा ही। Okay, the summer season is from May to September, and the winter season, this weather is very hot and dry during the daytime. The nights are relatively cool. कहता है कि यहाँ का जो समर स्टार्ट होता है वो मई से सितंबर तक होता है, और जो दिन का जो मौसम होता है वो बहुत ही क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत हॉट होता है, बहुत गर्म। लेकिन रातें जो होती हैं वो क्या होती है, दिन की अपेक्षा कुछ अच्छी और ठंडी होती है। द विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, दिस डे आर warm while the nights are very cold. In the coastal area the temperature are mild. Sandstorms are common in all seasons. They appear suddenly and make the sky hazy. कहता है कि यहाँ का जो ये विंटर है वो स्टार्ट होता है अक्टूबर टू अप्रैल, ठीक है। और ये जो दिन होता है यहाँ का दिन थोड़ा वार्म होता है, यानी कि गर्म होता है, लेकिन यहाँ की रातें जो होती हैं ठंड की वो काफ़ी ठंडी होती है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ का कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन कहने का मतलब वो एरिया जो कि सी और ओशंस के आसपास में है, वहाँ का जो मौसम होता है वो प्लीजेंट होता है, ठीक है। लेकिन सैंड स्टॉर्म जो है, यानी कि धूल भरी जो आंधियाँ हैं वो दोनों ही सीजन में चलती हैं, एज विंटर एज समर। आइए हम इसके प्लांट्स के बारे में जानते हैं, वेजिटेशन के बारे में। प्लांट्स विच कैन withstand hot and dry weather grow here. Most of the plants have long roots which go deep into the soil in the search of water. Various types of cacti grow here. Cacti have thrown in instead of leaves so that there is less of water through evaporation. Plants also have soft and fleshy root and stem to store water. कहने का मतलब क्या कि यहाँ जो भी मतलब प्लांट्स उगते हैं वो क्या होते हैं, वो थ्रोनी होते हैं, और उनकी जो जड़ें होती हैं यानी रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं। वाई? बिकॉज इट एब्जॉर्ब द वाटर, क्योंकि वाटर इसके सतह पे तो मिलता नहीं है, काफ़ी नीचे मिलता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे ही प्लांट्स होते हैं जिनकी जड़ें क्या होती है, काफ़ी अंदर तक होती हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके वाटर को, ठीक है। Camel is the most useful animal in this area. It can carry heavy loads through the burning hot sand. Its feet are adapted to walk on sand. It can live without food and water for many days. The camel is called the sheep of desert. यहाँ mainly camels को ज़्यादा rearing किया जाता है because it is very comfortable for this reasons, and its body structure and feet structure is also सुटेबल फॉर दिस एरिया। यहाँ उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर और फिट स्ट्रक्चर जो होता है वो यहाँ के लिए क्या होता है, एकदम सुटेबल होता है, क्योंकि वो बहुत हैवी ये लोड्स लेके आराम से सैंड पे चल सकता है और कई कई दिनों तक बिना पानी के वो सरवाइव कर सकता है। इसलिए कैमल्स को यहाँ पे पाला जाता है और इसे शीप ऑफ डिजर्ट का नाम दिया गया है। आइए इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं। अ वेरी स्मॉल पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज इज ऑब्टेन्ड बाय desalting the sea water. The main agricultural product are wheat, rice, alfalfa, vegetables and dates. Date plants grown in fertile area where the underground water comes to the surface, such as an area is called an oasis. Wheat and barley are grown near the oasis. There are permanent settlements here. Saudi Arabia is one of the largest producer of petroleum in the world. Almost the entire income of the country comes from the export of petroleum. Now the government of Saudi Arabia is developing different types of industries. कहता है कि इसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो एज अ ग्रोइंग क्रॉप्स के हिसाब से तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेशंस हैं वो तो काफ़ी कम मात्रा में ही उगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन के लिए ये क्या इरिगेशन और डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो जो सी वाटर होता है उसको क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, देन आफ्टर दे यूज़ दिस वाटर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फसल उगाए जाते हैं जैसे कि व्हीट, राइस,
flower and vegetables and dates, ओके। और यहाँ पे एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे सतह पे पानी होता है, ठीक है, उसको हम एक अलग नाम से जानते हैं ओएसिस। और यहीं पे मतलब जो भी फार्मिंग होती है या परमानेंट सेटलमेंट है यहाँ के लोगों का, वो इसी क्षेत्र के आसपास में होती है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम फाउंड किया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसी के एक्सपोर्ट से यहाँ का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। जो भी यहाँ के लोगों का मॉडर्नाइजेशन हुआ है और लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, ये पेट्रोलियम की वजह से ही हुआ है। एक्सपोर्टिंग टू पेट्रोलियम, एक्सपोर्ट जो होता है पेट्रोलियम और उससे जो पैसे अर्न किए जाते हैं उसके द्वारा वे लोग क्या करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, ठीक है। लाइफ ऑफ द पीपल, द डिस्कवरी ऑफ द पेट्रोलियम इन सऊदी अरेबिया हैज एक्सटेंड द लाइफस्टाइल्स ऑफ पीपल्स। पेट्रोलियम इज अ ग्रेट डिमांड all over the world. The money earned from exporting petroleum is used to improve the standard of living of the people. Towns and cities have all the modern facilities. Most people live in towns. They work as traders, executives and factories. Industries such as petrochemical, petroleum refineries, fertilizers, cements, iron, steel have been developed. A large number of schools and colleges have been opened to provide modern education. The traditional dress of Arab males is a long sleeve one-piece dress that covers that the whole body. They also wear a cloth over their heads held in a place by a ring woven from camel hair. Peoples in cities also wear European clothes. कहने का मतलब यहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है, लोगों के जनजीवन के बारे में। तो मैंने इससे पहले ही आपको बताया कि यहाँ का जो लाइफ जो चेंज हुआ है वो पेट्रोलियम की एक्सपोर्टिंग से ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का प्रोड्यूसर यही कंट्री करता है। और अभी जो पेट्रोलियम की नीड है वो सारी कंट्री में, ठीक है, सारे कंट्री के अलावा सारे कंट्री के टाउन्स और विलेज में भी इसकी बहुत मांग है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ के लोगों का जनजीवन काफ़ी चेंज हुआ है। इसके अलावा भी यहाँ पे लोग ट्रेडर, एग्जीक्यूटिव और फैक्ट्रीज में भी वर्क्स करते हैं। यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज के अलावा यहाँ और भी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि सीमेंट्स, आयरन, स्टील की भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई गई है। यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस को भी खोला गया है, जिससे कि वहाँ के बच्चों को, वहाँ के चिल्ड्रंस को क्या मिले, मॉडर्न एजुकेशन मिल सके। और यहाँ के लोगों के ड्रेस के बारे में बताया गया है कि यहाँ के लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस यूज़ करते हैं। वो एक कपड़ा पहनते हैं जो ऊपर से नीचे तक उनको ढक देता है, ठीक है। उसके बाद वो एक क्लॉथ को अपने हेड पे कवर करते हैं और उसको एक रिंग से, ठीक है, जो कि उनके हेड पे लगाया जाता है, वो रिंग्स बनाया जाता है कैमल्स के स्किन से, ओके। पीपल्स इन विलेज still lead a traditional life. It's centered around a marketplace, a mosque and a coffee shop. Most villages live by trading flock of sheep, goat and camels. They move from one place to another place in search of green pastures. They are called nomads. One such group of people are the Bedouins. कहता है कि यहाँ के लोग पारंपरिक रूप से अपना जीवन जीते हैं, ठीक है, और जो लोग मतलब कैटल्स को रियरिंग करते हैं वे क्या करते हैं, वो ग्रीन पास्चर्स के लिए, यानी कि जो मतलब कैटल वे लोग पालते हैं उनके खाने के लिए वे लोग कभी यहाँ तो कभी वहाँ ग्रेजिंग के लिए घूमते रहते हैं। और ऐसे ही लोगों को नोमेड्स कहा गया है। और ऐसे लोगों के समूह को, यानी कि ग्रुप ऑफ नोमेड्स को बेडुइन्स कहा गया है, ठीक है। बेडुइन्स लेड अ वेरी हार्ड लाइफ। उनका जीवन क्या है, उनका जीवन काफ़ी कठिन है। दे लिव इन टेंट मेड ऑफ ए कैमल स्किन। वे लोग मतलब खाना बदोश हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, तो इसलिए ये लोग कैसे हाउस में रहते हैं, ये लोग टेंट हाउस में रहते हैं जो कि कैमल्स के स्किन से ही बनाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम लिव बाय ब्रीडिंग कैमल्स which give the milk and hair to make cloths, tents and rugs. Bedouins move in group of forming long row of camels called caravans.
और ये लोग जब एक रॉ में कहीं जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, कारवांस कहा जाता है, ठीक है। इन द समर सीजन बेडुइन्स कैंप नियर एन ओएसिस, ये लोग गर्मियों के दिन में ओएसिस जो होता है उसी के आसपास में कैंप करते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन दे फॉलो द रूट्स थ्रू द डिजर्ट, और ये लोग जब ठंड का मौसम होता है तो ये लोग मतलब डिजर्ट एरिया में जाते हैं, वेयर देयर इज अ वाटर, जहाँ पे पानी होता है। दे एक्सचेंज गुड्स सच एज लैम्प, सीप, गॉड, वूल, कारपेट एंड कैमल्स फॉर फूड ग्रेन्स एंड अदर थिंग। जैसे कि ये लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, सेलिंग के लिए भी जाते हैं, ठीक है। सम बेडुइन्स हैव नाउ सेटल्ड इन टाउन, अब तो काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो गया है वहाँ पे, तो वे लोग कहाँ पे, वे लोग शहरों में रहते हैं। देयर लाइफ स्टाइल इज़ ऑल्सो चेंज, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी बदल गई है। दे हैव स्टार्टेड लिविंग एट अ वन प्लेस एंड मूव अराउंड इन जीप्स एंड कार, अब वे लोग एक ही जगह पे रहते हैं और जो भी उनको करना होता है, कहीं जाना होता है किसी चीज़ को सेलिंग के लिए, तो वे लोग जीप और कार का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में बताया गया है कि यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है वो रियाद और जिहाद है, जो कि रियाद जो है इट इज़ अ कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मतलब जितनी भी हाई फैसिलिटीज़ की चीज़ें होती हैं ये यहाँ पे उपलब्ध हैं। कहा गया है कि दिस सिटीज़ हैव एयर कंडीशन हाउस, बिल्डिंग्स, ह्यूज शॉपिंग मॉल्स एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़। जिहाद इज़ अ कॉमर्शियल सिटीज़ एंड बिजीएस्ट सी पोर्ट, जिहाद जो है वो कॉमर्शियल सिटीज़ है और ये सबसे व्यस्त सी पोर्ट है यहाँ का। सऊदी अरेबिया इज समटाइम्स कॉल्ड द लैंड ऑफ द टू हॉली मॉस्क्यू, कभी कभी सऊदी अरेबिया को क्या कहा गया है, धार्मिक स्थलों का देश, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों का देश, क्योंकि यहीं पर मक्का और मदीना दोनों ही सिटी यहाँ पे उपलब्ध है और ये दोनों सिटीज़ में जो मुस्लिम जाते हैं वो उनका जीवन पूर्ण हो जाता है कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं वैसे ही वे लोग उनका तीर्थ स्थल है मक्का और मदीना, जिसकी यात्रा जब वे करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, हज कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इस प्लेस में प्रॉफिट मोहम्मद जो कि फाउंडर थे इस्लाम के, उन्हीं का बॉर्न हुआ था, ठीक ना। विद द एडवेंट ऑफ ऑयल वेल्थ एंड कंट्री हैज़ गॉट westernized today, life in Saudi Arabia is comfortable, the people are prosperous and use their country's resources for the development of their country। कहता है कि यहाँ का जो रिसोर्स है, ठीक है, उसके द्वारा ये लोग क्या किए हैं, अपने लाइफ को काफ़ी चेंज कर रहे हैं। तो यही था आपका चैप्टर 8 हॉट डिजर्ट सऊदी अरेबिया, ठीक है। आप इसको माइन्यूटली पढ़ेंगे, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को पढ़ लेंगे ताकि आपका जो आने वाला एग्जामिनेशन है वो काफ़ी अच्छे से चले। थैंक यू।